The clock has struck 12 and it's time for Chitter Chatter. The new thing about today's Chitter Chatter is that this is the first time this guest is coming again for another Chitter Chatter. Let me tell you something special about him. He's one of my favorite authors, Yasir Usman. And you know what? He's actually born to write unfinished stories. I have been a big fan of him since he wrote about the Sanjay Dutt book, and you'll have seen me interview him for that. And today it is for his new book, Guru Dutt, The Unfinished Story. I think he's born to write the unfinished story, and I can't wait to chit chat with him. I'm super nervous, like always, when it comes to having a chit chat. Request and get started about this brilliant book. And if you all haven't read, please go on Amazon and order now. You can read my review about it on Goodreads as well as on my post. Hello! Hello, Shweta. I'm feeling so lucky यार दो बार in Of Shweta's course, show. yes. Thank you so much. दो बार आए हैं. Thank you so much. हाँ, that's a record. यही रखना और किसी को मत बुलाना. But I have to tell you, like I said in my post, you are somebody who has actually been born to write finished stories, because the way you write biographies, it is just like commendable. Thank you so much. What I feel happy about is that someone who has read the book is in conversation. So that makes it even more special. Normally, people don't read books, and that's a problem across the world. I think no one reads books, but you're reading the books and you're talking about them. Commendable, Shweta. But you know, I have to tell you, like when I was reading Guru that book, so I was a little apprehensive because I am a fan of him. I'm a fan of Vaidya Rahman, man, and for me it was like, you know, TK biography. I'm not from that time. Like obviously, while Sanjay Dutt, it was like I know it all, so I went through like really fast. But it actually felt, and I know it may sound bizarre, but it felt as if Guru Dutt in his spirit form was talking to you. Like it is as bizarre as it may sound, but it felt as if he was finishing his story through you. That means the job is done, Shweta, because tell you the story behind it. Of course, गुरुदत्त साहब और वहीदा रहमान हम हमारी जनरेशन के बहुत पहले से. But when I came out of college in Delhi, and since I was obsessed with Hindi cinema, I was a member of many film clubs active in Delhi. So there was one particular film club called Habitat Film Club. India Habitat Center है, उसका Habitat Film Club है. So there was a Gurudutt retrospective. I think it must be 2005 or 6. And I watched all the films of Gurudutt on big screen. And that was something very special, very magical. What I felt was that though the films are in black and white, they're black and white films, they're old films released in 1950s. But they never seemed dated to me. The emotions were, you could feel the emotions. Like you say, when you read my books, you could connect with it, with the story, you could feel the emotions. Likewise, when I watched those films, I could feel the emotions. There was a strong connect. And then I started reading about Guru Dutt. I knew, of course, Guru Dutt was an actor, a filmmaker, but it was after I watched his cinema on big screen that I started reading about him. And there was one question that was unanswered. That one, he created that magical cinema within a span of 10 years, all his films, because that was the span of his career. And then he committed suicide at a young age of 39. And no one answered why. Yeah. There was a very important character in his life, Geeta Roy, who became Geeta Dutt after her marriage with Guru Dutt. So Geeta Dutt was also missing from the previous books and previous accounts of Guru Dutt. So there were two important threads that were missing. So I started researching. And since then, I was not a writer then. Since then, I wanted to write this story. So I had to write 3 books before this, and this became my 4th book. But this is one of the stories closest to my heart. And I could feel, and also I went to Bombay and I met Guru Dutt's sister Lalita Lajmi ji, and she agreed to collaborate on the book. And through her memories, Guru Dutt सब जिंदा हो गया और उनका जो वो दौर था वो पूरी तरह जिंदा हो गया. That was the best part about this book. That is totally reflected. As a reader, I can say, be it the research, be it the way you've quoted about different places where you've, read about and everything. Like literally you're living that decade with him.
and with the people around him. And like I said, you finished a story that was unfinished, that everyone had Yeah, questions yeah, about. yeah, yeah. So, it's very difficult, especially, it is like a legend who is still living. Like everybody Mm, is fond of that legend even today. Like you said, he's not dated. He's still there in the hearts of people, especially in the hearts of people who are connected to the entertainment. Did you feel the mm, burden कि मैं इनके बारे में लिख तो रहा हूँ, एंड ऑलरेडी कुछ चीजें हैं, बट mm, बहुत चीजें हैं जो अनकही भी है. तो जब आप mm, लिख mm, रहे mm, थे, जब ये फाइनल प्रोडक्ट आपका बना, बिफोर इट गोज आउट, mm, व्हाट वाज योर फीलिंग, mm. व्हाट वाज द बर्डन यू वर फीलिंग एट दैट टाइम? There was a strange pressure, but pressure not that whether I would be able to write about him or not, because there are a lot of books on his cinema. Gurudas cinema is being taught across the universities, film schools across the world. So there were many books, many accounts, much research about his cinema. I was very sure that I'm writing about Guru Dutt the person. That was the most important thread and theme I wanted to carry in this book. अब दो वाक्य हैं श्वेता, और ये जिनकी वजह से मैंने कहा कि ये लिखना बहुत जरूरी है. So you must have read in the book कि एक बार when कागज के फूल didn't do well, when it was a disaster, uh, he was out for a location hunting with his camera person VK Murthy साहब. So VK Murthy साहब asked कि ठीक है ना, is it just a film ना यार, it is a business, कुछ फिल्में चलती हैं कुछ नहीं चलती हैं, what is your problem? So गुरुदत्त रिप्लाइज कि यार मैं जब आया था तो मुझे प्रोड्यूसर बनना था, मैं प्रोड्यूसर बन गया. मुझे डायरेक्टर बन के फिल्में डायरेक्ट करनी थी, मैंने डायरेक्ट कर ली, कामयाब भी हुई. फिर मुझे एक्टर बनना था, मैं एक्टर भी बन गया, हिट स्टार भी हूं अभी, है ना, अच्छी फैमिली है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं रहा. एंड देन ही सेज कि यार वो प्यासा वाला गाना मुझे लगता है मेरी जिंदगी पे फिट बैठता है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या. सो दिस वाज a fascinating thing कि he was such a sad soul, such a tormented soul कि ये इसकी फिल्में एक एक करके हिट हो रही हैं, लोग तारीफें कर रहे हैं, देखने जा रहे हैं, हाउसफुल हो रही है, बट व्हाई इज ही सो लोनली. सब कुछ है. दूसरी जो सबसे बड़ा वाक्य था इसके बाद का, जब मुझे वो पता चला कि ये किताब, मुझे ये कहानी लिखनी है, वो था कि when he was struggling, Devanand was his friend from his days of struggle. Yeah. तो देवानंद साहब पहले बड़े स्टार बन गए, एंड ही मेड अ बंगलो एट पाली हिल, एंड गुरुदत्त यूज्ड टू गो टू हिज फ्रेंड्स बंगलो, नरेशंस होते थे, एंड ही वाज मेकिंग हिज फर्स्ट फिल्म विद देवानंद. सो ही सेड कि I've never had a proper stable house in my life. Yeah. My childhood was disturbed. हम लोगों का एक घर नहीं था. तो कभी मुझे अगर मौका मिला तो मैं बंगलो बनाऊं. And he actually did it. A few years down the line, he made the biggest bungalow number 48 at Pali Hill. बहुत खूबसूरत बंगला था, सब इटली से मार्बल्स आए हैं, कश्मीर से लकड़ियां आई हैं, मतलब the best bungalow in town. और फिर एक दिन, that prologue, Yeah. where I have written, I've started my book with this instance because I think this best described Gurudev. जब चीजें बिगड़ी और जब थोड़ा सा डाउनफॉल आया और पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हुई, वन फाइन डे ही कॉल्ड अप 10-12 मजदूर से गिरा दो पूरे बंगले को. दिस इज लाइक माइंड ब्लोइंग, दिस इज इनक्रेडिबल, दिस आई हैव नेवर, अगर हम फिक्शन लिखते हैं, सोचिए अगर कोई फिल्म की कहानी लिखो और ये सीन लिखो, तो जो भी सुनने वाला होगा ना, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो कहेगा क्या बकवास है यार, ऐसे थोड़ी होता है, कोई अपना बुला के घर गिरा देता है. बट दिस एक्चुअली हैपेंड. So this was the story when I decided कि नहीं यार, ये तो one must write about Guru Dutt the person. This is a very important story, and this needs to be documented. And then the entire research of 2 years, and finally, of course there was pressure, but pressure ये नहीं था कि लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी. This is a story I wrote for myself. I can say that. Even if it अगर एक भी कॉपी नहीं बिकती, ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर मैंने सोच के रखा था अगर ऐसा भी हुआ तो भी मुझे मंजूर है. दिस इज सच अ स्टोरी एंड आई हैव टू राइट इट, एंड आई डिड. This was a project very close to my heart, and I completed it. I would disagree that only this project is close to your heart, because I've read 2 of your books and both the books looked like it was close to your heart, and you put your heart and soul in writing the book. हाँ, मतलब इतनी सारी चीजें क्लोज टू हार्ट हो जाती हैं.
मतलब it's a very strange thing, Shweta, when you write something, you are also an author. तो खास तौर पे जब आप ऐसे असली कैरेक्टर्स के बारे में लिख रहे हैं, when you're writing non-fiction, also with fiction, ना, your lead character, whatever your lead character is. For example, uh, if your lead character is Rajesh Khanna or Sanjay Dutt or Guru Dutt or Rekha, uh, you go to bed thinking about them. एवरी बोले मैं क्या सोच रहा हूँ, संजय दत्त ने जब ड्रग्स ली थी तो क्या हुआ हुआ है ना, मैं क्या सोच रहा हूँ कि राजेश खन्ना की जब बारात गई थी तो वो कहाँ से निकली थी, मैं ये सोचता हुआ कल लिखना है ये सब्जेक्ट, है ना। एंड गुरुदत्त ने जब अपना घर गिराया, so it is so strange that they become a part of your life for those 1, 2, 3 years. So and a book is a long project, so it just goes on. और आप ऐसी चीजों के बारे में सोच रहे हो, ये लोग अभी है भी नहीं इस दुनिया में। 1960 में 1950 1960 के दौर की बात हो रही है, एंड यू आर स्टिल थिंकिंग एंड बीइंग इमोशनल अबाउट दैट कि यार नहीं, है ना, सुसाइड नहीं करना चाहिए था, क्या ऐसा क्या गम था, सब कुछ तो मिल गया था। बट देन दैट्स द ब्यूटी ऑफ इमोशंस, बिकॉज इमोशंस वो 1950s के हों या 2020 के हों, एंड दिस पर्टिकुलर बुक आई वाज राइटिंग इन 2020, so it became even darker. And very strange thing, Sushant Singh Rajput's death happened, and as a TV journalist, I was writing scripts during the daytime about Sushant Singh, और रात को घर आता था तो गुरुदत्त साहब के चैप्टर्स लिखता था, which were equally darker. So, and 2020 in itself was a dark. So it actually इतनी सारी चीजें हो गई थी कि बहुत डार्क हो गया था ये स्टोरी अपने आप में. And to write about death, to write about depression, to write about suicide, बहुत बहुत similarities भी हैं. Sushant passed away at the age of 34. Gurudutt was 39. They had achieved their dreams. कुछ बचा नहीं था. Sushant wanted to be a lead actor, a star. He was a star. He was a big star. Gurudutt wanted to be a filmmaker and star. He was a filmmaker and star. उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी. फिर what was bothering them? What was bothering them so much that they decided to end their lives? So ये बड़ा अजीब चीज बात है, and I think that's the reason it connects with people, you know, to humanize the enigma कि ये सब लोग जो stars हैं क्या हम लोगों से अलग होते हैं? ठीक है, आप भी star हैं, क्या आप same emotions feel करती हैं, वही emotions तो same होते हैं ना. So as a human being, वो जिस दर्द से गुजरे हैं, जब आप लिखते हो और अगर आप शिद्दत से लिखते हो, बहुत पैशन के साथ लिखते हो, कम से कम मैं ऐसे लिखता हूँ, तो यू कुड फील दोज इमोशंस. एंड वो कुछ दिन जब मैं खासतौर पे वो जो आखिरी का हिस्सा है, जब वो बिल्कुल जिंदगी से बेजार हो गए हैं और अब लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, हो चुका है, पूरी दुनिया जानती है कि हुआ था, बट आई एम स्टिल गोइंग थ्रू दोज इमोशंस कि नहीं यार, ये तो इस पॉइंट पे बचाया जा सकता था. ये जब इन्होंने थर्ड टाइम अटेम्प्ट किया था और वो हॉस्पिटल गए थे, तब भी बचाया जा सकता था. एक साइकाइट्रिस्ट आया था, वो एक ही बार आया, उसके बाद उन्होंने बुलाया नहीं. तो इतनी चीजें हैं कि ये गलतियां दोबारा भी हो रही हैं, आज के दौर में भी हो रही हैं. सुशांत के केस में भी शायद हुई. कुछ ज्यादा बदला नहीं, इमोशंस वही रहते हैं, और आई थिंक दैट्स द रीजन इट कनेक्ट्स विद रीडर्स. सो एक कोशिश थी, और वो कोशिश मुझे लगता है कुछ हद तक पूरी हो गई. मुझे जब लोग कहते हैं, आप जब कहती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. वो कहानी आप तक पहुंच गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी पहुंचना, और वो कहानी तो रहेगी. हम लोग जब नहीं रहेंगे तब भी वो कहानी रहेगी, तो कहानियां जिंदा रहेगी. जैसे आप कह रहे थे, एक तो आप लिख रहे थे एक फेज में जो वैसे ही डार्क था सबके लाइफ में, एंड यू नो you're closed in a closed door and you're reliving. जैसे मैं बुक पढ़ रही थी, तो मैं जो पार्ट आप मुझे पढ़ा रहे थे, मैं वो ही पढ़ रही थी, बट आपने और बहुत कुछ पढ़ा है. आपने वो टर्मोइल साझा किया है. लिटरली आप उनके साथ वो जी रहे थे कि अगर वो बंदा, जब उन्होंने कॉल किया, वो आ जाता, अगर बच्चे आ जाते, अगर यू नो रात को 2:30 बजे अगर गीता दत्त को अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्या वो कॉल कर लेती? क्या उन्हें टैक्सी लेके तो शायद कहानी दूसरी होती ना. बस एक ही तो पॉइंट होता है जो जिंदगी बदल जाती है ना. वो एक पॉइंट अगर किसी और तरह से हो गया होता तो कहानी का ट्रैक बदल गया होता. यही तो होता है. तो जब आप वो जी रहे थे, यू नो, और गुरुदत्त साहब की जो स्टोरी है, इट्स गॉट अ लॉट ऑफ टर्मोइल्स, क्योंकि वो काफी चीजों को बहुत पर्सनली लेते थे, एंड बिकॉज ही कुडंट टॉक अबाउट इट, ही वुड गो थ्रू इट, बी इट कागज के फूल, be it when suddenly somebody stopped talking to him, he took everything to his heart, कुछ भी होता था तो, and you were living it with him. How would you overcome your own void after living that? Because so many times when I was reading and I was like, oh shit, ये क्यों हुआ?
maybe he should have spoken about it. Why did he take this literally? And I had to bring myself out from वो book बंद करने के बाद, because somewhere I would feel his pain. So to come back to reality, and a void. Since the day I have completed the book, I feel a strange void कि ये तो इसके साथ जी रहे थे 2.5 साल से और अब एकदम से खाली हो गया, खालीपन. तो वो खालीपन जब अगली कहानी आएगी तब पूरा होगा शायद. बट वही इम्पोर्टेंट और जो विजडम के नगेट्स इस किताब में है वो जॉनी वॉकर साहब के हैं. हाँ. है ना, वेयर ही सेज, है ना, इतनी कितनी छोटी सी बात है. इसे इसके घर और स्टूडियो में जितनी दूरी रखोगे उतने सुखी रहोगे, है ना, वरना घर की बातें स्टूडियो में होंगी और स्टूडियो की बातें घर में होंगी और तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम घर में हो या स्टूडियो में, है ना, काम से आ रहे हो या काम पे जा रहे हो. सो आई थिंक that's the crux of the story. But passionate souls cannot differentiate between घर and studio. Let's put it this way. तो जो गौरी के सेट पे हुआ, फिल्म गौरी जब वो बना रहे थे, तो उनका सिनेमा इतना पर्सनल था कि जो गौरी के सेट पे हुआ वो अगली फिल्म कागज के फूल थी, जो गौरी के सेट पे असलियत में हुआ वो कागज के फूल के सीन बन गए, है ना. जो उनके फादर जिस मुश्किलातों से गुजरे वो प्यासा की कहानी बन गई, है ना. तो ये सब कुछ चल रहा था, साथ में चल रहा था. तो वो छोटी बहू के जो शेड्स हैं वो भी उसमें काफी उनकी पर्सनल लाइफ से है. अपना कैरेक्टर सब में डालते ही थे. मिस्टर एंड मिसेस 55 और आर पार में जो उनकी पुरानी मोहब्बत थी उनके किस्से आए. तो his cinema was intensely personal, and when we talk about Gurudas cinema, that cannot be talked about in isolation. कि हमने कह दिया बहुत अच्छा, है ना, सीन लिया, बहुत अच्छा शॉट डिवीजन था. That's a technical scenario, but we cannot talk about Gurudas films in isolation because he was pouring his pain, his turmoil into his cinema. So that's why it becomes intensely personal. तो इसीलिए जब आप देखेंगे ना वो जो आगे पीछे का नैरेटिव है किताब में, वो भी यही है कि जो एक तरफ जिंदगी में हो रहा है, फिर फिल्म की मेकिंग भी आ गई और फिल्म की मेकिंग में भी वही प्रॉब्लम चल रही है कि लड़ाइयां भी हो रही हैं, फिल्में बंद भी हो रही हैं, लोग नाराज भी हो रहे हैं और फिर वो सब कुछ जो हो रहा है वो अगली फिल्म में दिखाया जा रहा है. ये बड़ा कमाल का वो जो there's a very thin line between fact and fiction vis-a-vis Gurudas, and that line kept on blurring. It blurred and it completely became invisible through his death. कि वो जो कागज के फूल में एक फिल्म मेकर है, उसकी जिंदगी में पर्सनल लाइफ में जो होता है बीवी के साथ, उसकी जो म्यूज है उसके साथ जो वहीदा जी ने प्ले किया, जो बच्चों के साथ उसका रिश्ता है अपने, वो सब कुछ ब्लर होते होते आप गुरुदत्त की जिंदगी का जो खात्मा हुआ वो देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही. इट इज सो सिंबॉलिक कि वो स्टूडियो की चेयर पे बैठा डायरेक्टर, तो वो जो स्टूडियो और घर वाला सब कुछ चेयर पे बैठा और वो मर जाता. यहाँ पर जब वो मरे तो उनके हाथ में एक किताब थी, वो किताब जिस पर उनकी अगली फिल्म बेस्ड होने वाली थी. और मरने से पहले भी क्या डिस्कस कर रहे थे, बहारें फिर भी आएंगी के का क्लाइमैक्स सीन. तो सब कुछ ये समझ ही नहीं आता है कि क्या फिल्म है और क्या असलियत है. सो इट वॉज इन दिस एस्पेक्ट दिस बुक वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द प्रीवियस बुक्स ऑफ माइन, कि यहाँ पर दो अलग चीजें नहीं चल रही. ये नहीं है कि संजय दत्त की पर्सनल लाइफ अलग चल रही है और जो फिल्में हैं वो बिल्कुल अलग हैं, वो कहीं मैच नहीं करती हैं. रेखा की पर्सनल लाइफ और फिल्में मैच नहीं कर रही. यहाँ तो नैरेटिव जो पूरी जिंदगी का है वो फिल्में और असली जिंदगी बिल्कुल एक ट्रैक पे चल रही है और आखिर में जाके वो मिल जाती है उनकी मौत के साथ. Like you said in your book, the real life and real life actually merged into one. हाँ, actually merged into one. Yeah, truly. So your fans here are simply love the book. You have beautifully penned it. What a lovely way you have penned your books. And there are lots of hearts flowing in. So. Oh my God, so many hearts. Yeah, because I am sure whoever has read this book will not be able to keep this book down, and I'm not biased, though you're one of my favorite authors after this book all the more. But I have to tell people that they have to pick this book to hear the story. हाँ, मतलब मेरी भी मत मानिए, श्वेता की मान लीजिए. श्वेता की बात जरूर मानिए, उनकी सारी बातें मानिए और अब ये वाली तो जरूर मानिए. सबसे अच्छा क्या लगा श्वेता, can I ask you as a reader when you're reading the book and you also write, you have written a wonderful book. As a writer reader, जब आप मेरी किताब पढ़ी थी तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज से कनेक्ट किया? See, what I connected as a reader was that एक तो it was in a very simple language, जैसे हमारी अभी चिटर चैटर हो रही है वैसे ऐसे लग रहा था कि आप मुझे कॉफी पे ये बात बता रहे हैं कि उनके साथ ये हुआ, जॉनी वॉकर साहब ने ये कहा, देवानंद साहब ने ये कहा,
and this is what he did. So it was just like we are chatting right now. So it was very easy to read. Also, आपने एक को granted नहीं लिया कि जो book उठा रहे हैं, they are typically a Gurudutt fan, so they know everything about him. Like everything Yeah, was yeah. explained. So if I have not seen a movie, I didn't have to go on Google, search about that movie, or understand. So that one thing I think as a reader, especially for the millennial generation, it is something which is kudos कि आपने वो granted नहीं लिया था कि this person knows it all. And third, it was like the way you've done your research, wo it comes across. So you're not just reading that one person's story, but everyone's story around him, about him. So these are three things. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये मैंने इतना तो नहीं सोचा था, मैंने बस ये सोचा था कि हाँ जो लोग पढ़े, क्योंकि बहुत से लोग नाराज भी हो जाते हैं कि ये सब तुम्हें पता था, नया क्या है। मेरा पॉइंट यही था कि ये उनके लिए है जो शायद बिल्कुल नहीं जानते, तो वो पूरा दौर रिक्रिएट करना है। आपने कहा तो मेरा तो आज दिन बन गया। इससे पहले एक दिन और बना था जब गुरुदत्त साहब की सिस्टर ने वो पढ़ी, बिकॉज आई वॉज वेरी स्केयर्ड। शी हैज शेयर्ड हर मेमोरीज विद मी, और उनके लिए बहुत पर्सनल है। मैं तो शायद लिखूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। शी हैज lived those those days of turmoil with Gurudutt. She read it, और जब मैंने उनको किताब भेजी तो वो तीन दिन 4 दिन तक पढ़ती नहीं, कोई जवाब नहीं आया ना। आई वाज वेरी स्केयर्ड। आई सेड बॉस ये गड़बड़ हो गया ना। तो नहीं, उसके बाद वन फाइन मॉर्निंग आई वाज गोइंग फॉर वर्क, और उनका रास्ते में फोन आता है गाड़ी में, एंड शी सेड कि अगर आप यहाँ होते तो मैं आपको बहुत जोर से हक कर लेती, क्योंकि मैं बता के भूल गई थी कि ये सब बातें, बट आई रीलिव दोज मोमेंट्स, आई क्राइड माई हार्ट आउट, एंड it felt like healing after reading your book. And in that moment I realized कि अब कुछ ना हो इस किताब का, अब उसकी बात भी ना हो, कोई पढ़े भी ना, it doesn't matter, because जब उनकी बहन ने कह दिया, जो साथ थी, जिन्होंने वो पूरा दौर देखा है, जिया है, जब वो बुलाते थे रात को कि मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ आफ्टर हिज सुसाइड अटेम्प्ट्स, शी वाज देयर। जब उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये आई थिंक दिस इज द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन गुरुदत्त, आई थिंक मेरा काम कुछ तो हो ही गया। तो दूसरा आज आपने कह दिया तो कमाल ही है। मतलब इस पे तो पार्टी बनती है, बट वही है कि पार्टी इंस्टा पे हो नहीं सकती है, उसके लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा। हाँ हाँ, पार्टी तो ड्यू है, डन है, एकदम डन। तो बस यार ये हो गई खत्म, और अब आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू मूव ऑन। अब 1 महीना हो गया, बट रोज कोई ना जो भी रीडर्स पढ़ते हैं, कभी वो फोटो लगा देते हैं, आई कीप ऑन शेयरिंग, तो ऐसा लगता है कि मतलब ना ये मोह छूट नहीं रहा है। अब छूट जाना चाहिए, बट लोग इतने प्यार से लगाते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, गाने के साथ लगा देते हैं, है ना। आप जब शेयर करते हो इतना खूबसूरत तस्वीर, है ना, वो लोगों को समझ में नहीं आता गुरुदत्त का कवर देखें कि आपको तो 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 बहुत अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू कीप ऑन शेयरिंग दैट, और वो जब तक भी ये कहानी चले, जब तक पहुंचे, दूर तक पहुंचे, जहां तक पहुंचे, बट कनेक्ट हो, और लोग सोचें। कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज भी हैं, मेंटल एगनी से जो आदमी गुजर रहा है, अगर किसी की फैमिली में है, अगर किसी के दोस्तों में है, तो जाहिर है बहुत बड़ी बड़ी बातें और टेक्निकल बातें होती हैं कि यहाँ ये कीजिए, वो कीजिए, बट आई थिंक अ टच ऑफ जिसको कहते हैं अ टच ऑफ ह्यूमननेस, वो अगर आपका कोई जानने वाला गुजर रहा है, तो मैंने इस किताब से ये सीखा नहीं कहानी से कि यार बहुत लोग इनके करीब थे। Correct. कोई भी एक आदमी अगर समझ गया होता तो कहानी कुछ और होती, तो बस, लेकिन कोई नहीं समझा, बिकॉज वो भी बात नहीं करते थे और किसी और ने भी बात करने की कोशिश नहीं की। तो वो बात करने की कोशिश जरूर करें, कम्युनिकेट जरूर करें। तो ये सीख इस किताब की थी। और दूसरी थी कि हर चीज को इतना पर्सनली ना ले, मतलब उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, हर किसी की जिंदगी में आते हैं, छोटे बड़े, जिस हिसाब से वो काम कर रहा है, बट मुझे लगता है वो पर्सनली ना लें इतना ज्यादा। पैशन और शिद्दत बहुत जरूरी है, लेकिन ये ओवर शिद्दत जो हो जाती है ना, तो मामला बिगड़ जाता है। आपने तो बहुत शिद्दत से ये बुक लिखी, बट आई एम श्योर हर बुक के टाइम पे एक जर्नी रहती है, सम हार्डशिप्स कम। व्हाट वर द मोस्ट डिफिकल्ट हार्डशिप्स दैट केम व्हाइल राइटिंग दिस बुक? The most difficult hardship was that Gurudutt's own voice was missing in terms of his interviews. When I was writing Sanjay Dutt's book, there are like thousands of interviews. So you actually know, if you go through most of the interviews, तो आपको पता है कि अच्छा, when his mother passed away, for example, when he was going through his drugs phase, when he went to jail, सबके आगे पीछे के इंटरव्यूज हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 1984 का इंटरव्यू है, तो आपको पता चल रहा है कि उस वक्त 1984 में बहुत यंग थे, उसी तरह की बातें करता है आदमी।
फिर जब जब मुन्ना भाई का टाइम आया तो मेच्योर हो गए थे, उसके बाद पुणे जेल में रह के आए, तो वो मेच्योरिटी भी दिखती है उनके इंटरव्यू। इन केस ऑफ गुरुदत्त, आप ये सुन के हैरत में पड़ जाओगे कि उनका एक भी क्वेश्चन आंसर टाइप इंटरव्यू नहीं है। हाँ। जैसे सब बड़े सर, एक भी नहीं है। सो दिस वाज द मोस्ट शॉकिंग थिंग, ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने ढूंढा, मिल ही नहीं रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। तो गुरुदत्त की जितनी भी कहानियां हैं वो उनके एसोसिएट्स, फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स और पीपल वर्किंग विद हिम, ये उन सब की यादों के सहारे जिंदा की गई कहानियां। तो वही बचा कि वीके मूर्ति साहब ने एक लंबा सा ऐसे लिख दिया, वहीदा रहमान जी ने बहुत बातें की, उसके थ्रू एक कैरेक्टर को खड़ा करना ये आसान काम नहीं था। गीता दत्त का कोई इंटरव्यू नहीं है, तो गीता दत्त भी दूसरों की यादों से जिंदा है। तो ये जो मेमोरीज के थ्रू आप एक खाका, एक पूरी पूरी की पूरी किताब 350 पेज की, पूरी एक लाइफ हिस्ट्री लिखना, वो आसान नहीं है। उनकी माँ ने भी एक किताब लिखी है, माय सन गुरुदत्त, तो वो एक माँ का वो है। उनकी बहन ने मुझे जो कुछ बताया वो एक बहन का पर्सपेक्टिव है, जहां पे जाहिर है गुरुदत्त साहब के बारे में कोई बहन या माँ नेगेटिव नहीं बोलेगी। लेकिन कुछ और लोग थे जो बहुत बैलेंस तरीके से, अबरार अलवी साहब थे, उन्होंने बहुत बातें बोली। तो बहुत अलग अलग जगह से एक जमा होके एक जो बना है, ये वो कैरेक्टर है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम थी, आई डोंट नो व्हाई उनका उनका इंटरव्यू नहीं हुआ। ये भी एक बहुत लोगों ने बोला कि यार वो भी थोड़ा सा बॉयकॉट उस वक्त किए जाते थे, मीडिया उनसे बात नहीं करती थी। ये भी बहुत सिमिलैरिटी मुझे सुशांत की जिंदगी से नजर आई। लेकिन जो भी था वो इतना पीछे जा चुका है कि वो उसका वो आप बदल नहीं सकते। क्यों गुरुदत्त साहब के इंटरव्यूज क्यों नहीं है, वो किसी मैगजीन के कवर्स पे क्यों नहीं आते थे, ये सब आप बदल नहीं सकते। तो ये मुश्किल मुश्किल थी इस किताब को लिखते वक्त, एंड आई हैड टू गो थ्रू इट। सो इट वाज अ डिफिकल्ट जर्नी, नॉट एन इजी जर्नी, but it was made easier when a sister when his sister agreed to speak. So वो आसान हो गई फिर। So now I'm going to ask you a quick question round, whatever comes to your mind, and you don't have हैम्पर enough मिलेगा, time to think. हैम्पर मिलेगा, कॉफी हैम्पर। हाँ, पर उसके लिए आपको बॉम्बे आना पड़ेगा। पार्टी पहले आप देंगे, उसके बाद मैं हैम्पर दूंगी। And I know what has to be डन in है, that hamper, the bookmark. डन है, डन है। थैंक यू सो मच। वो जो Okay, आपकी डायरी थी वो मैं अपने साथ रखता हूँ हमेशा, बहुत ही खूबसूरत डायरी है। I'm so glad you liked it. Up next up on the way is bookmark for you. It's still on my list. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अब आपके पास रेखा पहुंचने वाली है बहुत जल्दी। Oh, okay, I'm all excited. अभी बार्टर के बाद let's start our round, okay? Now आप name a आपस में ही बात song. करते रहेंगे। Name a song of सॉरी सॉरी। Gurudats that comes to your mind right now. जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। A song of his that calms you down. तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए। A तुम song जो that is playing. हुए मेरे हम हाँ, मैं वही बोलने सफर, वाली थी, गाइए। रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरी राह के राहों में जल गए। It's such a soothing song, though it's not. The film is not made by Guru Dutt. It's not a Guru Dutt film. He was just acting in the film with Bahida ji. But I love this song. A song that is in your head. That is in my head of Guru Dutt. Yeah. Of Guru Dutt. Uh, a less popular one, but there's this song in Kavyas Ke Phool. सन 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 यूं चली हवा, सन 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 यूं चली हवा, चुपके से कान में कुछ कहा। इट्स अ हैप्पी सॉन्ग, इट्स ओनली हैप्पी सॉन्ग इन दैट फिल्म। और मुझे उनके हैप्पी सॉन्ग ज्यादा पसंद आते हैं। सैडनेस इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब वो सैड सॉन्ग की तरफ जाने को थोड़ा दिल नहीं करता। हाँ, I am sure. मतलब हम पढ़ के, like I'm हाँ। telling you, when I finished the book, I had a heavy heart. I हाँ। was like, अभी मैं इसके बारे में नहीं लिख सकूंगी. I had to just be with that thing. So you writing and reading so much about it can totally understand what you must have gone through. And Seriously, it affects you. Mm. Yeah. okay, a song that you heard last of Guru Dutt. Last, अच्छा, okay. This, I याद क्यों नहीं आ रहा है? कौन सी थी? एक दो तीन, आई थिंक प्यासा का ही सॉन्ग था, दादर सॉन्ग। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की सुन। अब
More than that, I think कागज के फूल बिछड़े सभी बारी बारी, वेरी वेरी सैड सॉन्ग, और वो पूरी फिल्म में बजता रहता है, बट वो आ जाता है वो, when you have to talk about him, the two songs that describe his life and death, one is जाने वो कैसे लोग थे जिनको, प्यार के और जरिए प्यार में. and then towards the end of his life, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी, so वो था. A song that makes you sad. That makes me sad. आई थिंक जाने वो कैसे लोग थे जिनको, वही वो सॉन्ग है उनका, और वो आई थिंक that's a sad Okay, song, that's enough a of song close sadness. to A song that makes you happy. हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा ले तो, I think writing के the साथ only ना dream गाना song, भी the only शुरू. this is the only dream song in Gurudutt, any Gurudutt's film. पता नहीं क्यों नहीं रखते थे, इतने रोमांटिक आदमी थे, इतना बढ़िया डांस करते थे, he was a choreographer. तो देखिए आप क्या जबरदस्त उसमें डांस कर रहे हैं माला सिन्हा के साथ, और वो अकेला रोमांटिक सॉन्ग है जो कम्प्लीटली रोमांटिक सॉन्ग है, जिसमें वो छेड़ रहे हैं हीरोइन को, तो वो उसके बाद में, उससे पहले उन्होंने कभी डायरेक्टली ऐसे नहीं किया, बट बहुत बहुत खूबसूरत है, हैप्पी है. On this हाँ, happy फिल्म में उन्होंने note, सैडनेस के साथ यूज किया है, फिल्म में तो पुराने दिन सोचते हुए याद करते हैं, बट इट्स अ हैप्पी सॉन्ग. yeah, it brought a smile on your face. So I know this या song या makes you या happy. हाँ हाँ. If you had to dedicate one song to your book, Guru Dutt, The Unfinished Story, एक गाना जो पूरी book बोलता है, what song would it be? ये बहुत मुश्किल सवाल है. ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या. Okay, who was the last person you interviewed for your book? No, that was his sister. I kept on speaking with her, and when the book was almost over, because it was written through the lockdown, तो फोन पे बात हुई, फोन पे इंटरव्यूज होते रहे, बहुत सारे इंटरव्यूज हुए, फिर ये था यार एक बार मिल लेते हैं, मिलना बहुत जरूरी है आमने सामने बैठ के. तो मैं बॉम्बे गया, आई थिंक दैट वाज इन अक्टूबर, जब थोड़ी सी दुनिया खुलने लगी थी, एंड आई वेंट टू मीट हर. ग्रेट मीटिंग, और 2-3 बार मिला, मतलब रोज जाता रहा, जब तक बॉम्बे रहा रोज मिलता रहा. आखिर में उन्होंने मुझे, एक दिन मैं उनके घर पहुंचा, पहले तो बातें ही होती थी हमारी, वो सब बातें हो चुकी थी, लेकिन वो आमने सामने बैठ के एक अलग मजा था. फिर जब मैं आखिरी दिन उनके पास गया, तो सुबह सुबह उस दिन मेरी फ्लाइट थी दोपहर को, सो आई वेंट टू मीट हर फॉर ब्रेकफास्ट. तो मैंने देखा है वो सब, एक बड़ी सी टेबल थी, मार्बल की टेबल है उनके ड्राइंग रूम में, उसमें सारी चीजें ऐसी सजी हुई थी, गुरुदत्त साहब की कम से कम 200 तस्वीरें, है ना, उनका लाइसेंस, उनका पर्सनल राइटिंग पैड, उनकी अनफिनिश्ड स्क्रिप्ट्स, वो सब. उन्होंने कहा कि ये तुम सब इसमें से जो चाहो ले सकते हो. सो दैट इन इटसेल्फ वाज सच अ ग्रेट जेस्चर. मैंने कहा लेकिन आप क्यों दे रही हैं, अगर मैंने वापस नहीं किया तो. बोलती कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई कैन सी योर पैशन, द वे यू नरेट माय ब्रदर्स स्टोरी, आई कैन सी योर Wow. पैशन, सो यू कैन टेक व्हाटएवर यू लाइक. तो मेरे पास गुरुदत्त साहब का पर्सनल राइटिंग पैड है, उसमें उन्होंने वो नोट्स किए, तो मेरी टेबल पे रखा था. ये बड़ा ही बिजार एक्सपीरियंस है कि जब मैं आखिरी उनकी मौत के बारे में लिख रहा हूँ और आखिरी के चैप्टर लिख रहा हूँ, तो उनका जो पर्सनल नोट पैड है, इसमें वो रोजमर्रा की चीजें लिखते थे. मरने से पहले भी जो उन्होंने 1-2 चीजें लिखी थी, क्योंकि उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी. आखिरी फिल्म बना रहे थे, बहारें फिर भी आएंगी, तो बहारें फिर भी आएंगी के सेट डिजाइन और ये सब उन्होंने जॉट डाउन कर रखे थे उसमें, वो मेरे पास अभी भी है वो नोट पैड. तो ये बड़ा ही सरियल सा एक्सपीरियंस था कि ये 60-70 साल पुराना वो चीज मेरे बगल में यहाँ पर है. उनकी तस्वीरें तो थी, वो हैप्पी फैमिली वाली तस्वीरें, शूटिंग की तस्वीरें, बड़ा ही सरियल एक्सपीरियंस था. तो वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, वो हमेशा वो एक्सपीरियंस. वो जब खत्म हुई और मैंने मेल किया अपने एडिटर को फाइनल कॉपी, तो एकदम से खाली हो गया पूरा, ऐसा लगता है ना कि सब कुछ निकल गया और कहीं दे दिया. आपका सूटकेस होता है, उसके बाद आप खाली करके दे देते हो किसी को, और सूटकेस खाली है, वैसे अंदर से खालीपन महसूस हुआ. और वो काफी हद तक अभी भी है, और मुझे लगता है वो एक स्पेस रहेगी, नई कहानी आ जाएगी तब भी वो स्पेस रहेगी, क्योंकि यू हैव लिव्ड विद द स्टोरी फॉर सो लॉन्ग. I think you're truly lucky, and like I said, as bizarre it may sound, Gurudat Saab was somewhere a part of this book. That's why that writing pad came to you. It was his way of just telling you that I am with you in this book. Like, या this is truly being lucky.
So thank you so much. But I think I feel lucky कि 2 बार कोई नहीं आया शो पे, आएगा, आना भी नहीं चाहिए, बस किसी को मत बुलाना। तो तो तीसरी बार भी बैठेंगे जरूर। तो But thank तो you, इंशाल्लाह Asif, for तीसरी बार being तो a part of this chitter chatter. Thank you for writing this story and finishing the story, which everyone had questions about. And best wishes for this book. And God willing, आपकी न्यू स्टोरी शुरू हो जाए ताकि हमें एक और बुक नेक्स्ट ईयर मिले पढ़ने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल and thank you so much first for reading the book, Shweta, and then calling me on your show and talking so lovingly about the book. And like we discussed, the story close to my heart, your heart now. So it's out, और जितने भी लोग सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो कोशिश करें, पढ़ें, खरीद के ना पढ़ें, उधार लेके पढ़ने श्वेता से, but just read it and feel the emotions, है ना? तो सॉरी, मैं मेरी किताब बुक नहीं नहीं बेच दे रही हूँ. जाओ खरीदो. This book is too special for me. रहे. So go on Amazon, Flipkart, wherever and buy your copy. And buy your copies. Yeah. Thank you so much, Shweta. Thank you Thank so you, much. Asir. See you soon. Happy reading See you and soon. writing. Yeah, you too. Yeah, you too. Bye-bye. Bye. Bye.